सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी Hello, welcome you all. This is Pravesh Kumar, and today we are going to discuss about slide 2015 set B question paper. Okay, so my previous lectures on 2012, 13, 14 papers are already uploaded on the channel. So please go through it first of all, because in this question paper I am not going to discuss all the question paper, all the questions like physics, chemistry, mathematics. I will just go through the only the important questions that are asking in the previous exams. Okay. So first of all, because all the questions like in this paper is similar to the paper, similar to the question that I have already discussed in my 13, 14, 13, sorry, 12, 13, 14 question papers. Okay. So in this paper, I will only focus on the main concepts and the questions that are slight typical and the slight tricky. Okay. So let's start. Like this is a chemistry section and all the questions already discussed in the chemistry section. So I do not have to discuss about much in this section. Okay. So let's start like this question, which one of the following is not a form of ionic bonding? This is the hydrogen bonding actually. So the answer will be hydrogen bonding, because everybody know there is a three main bonds. Chemical bondings are covalent bond, ionic bond, metallic bond, and rest are like hydrogen bond, because they are only in the molecules and the atoms. Okay. So like these kind of questions, like this question 16, the angle between the centripetal acceleration and the tangential acceleration. Like centripetal acceleration की अगर बात करें, so अगर हम tangential की बात करें, centripetal acceleration is the top pointing toward the center, so the angle between them is always 90 degree. Okay, the answer will be C, always 90 degree. So these kind of stuffs already I discussed, because these all are I have discussed in already my previous lectures. Please go through it first of all. Okay. Like this 26th question, for the propagation of electromagnetic waves, electric and magnetic field oscillates parallel to each other and perpendicular to the direction of light. Oscillates parallel to each other and also in the direction of the light. Oscillates perpendicular to each other and also the direction of the light. None of these. The answer is B. Okay. क्योंकि वो कभी भी पैरेलल में ऑसिलेट्स नहीं करते, वो हमेशा परपेंडिकुलर में एक दूसरे को ऑसिलेट करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज दे आर ट्रांसवर्स वेव्स. Like this, if the magnetic field is in this direction, then the electric field will be in this direction, and the direction of propagation will be perpendicular to both, like in this direction. So this is the direction of the propagation. Okay, this is the direction of the magnetic field, suppose, if, and this is the direction of the electric field. So this kind of nature they're traveling. But the amount, what is not a must for the propagation of electromagnetic wave, everyone knows, like light is also in a form of the electromagnetic wave. So the main property of electromagnetic waves, they can also travel through a vacuum, or you can say without medium. Okay, they not require medium, because electric field, magnetic field is necessary conditions, and the electric charge is a generation. Okay, so without electric charge they can't travel actually, means they can't produce itself. Okay. The radioactive decay law is expressed by obviously exponential functions. Okay, so everything we have already discussed, and most of the and you all know about all these things, like the simple cubic root formula, because if I'm going to discuss, there's a 2 hours paper, it will require 1.5 hours. Okay, so I don't want to these kind of lengthy videos, because students get fed up. Okay, after 15 minutes and after half an hour. That's why I'm trying to make this video small. All the basic mathematical questions, just go through it. Like this kind of questions, if there is a sine inverse and sine inverse 1 minus x plus cos inverse, there's a direct formula about it. Okay, like sine inverse x plus sine inverse y, if you just let it x and let it y. Okay, so sine inverse x plus sine inverse y, what the formula is? Formula sine inverse bracket में x under root of 1 minus y square plus minus, then उसके बाद x under root of 1 minus x square, sorry, y under root of 1 minus x square. So these kind of formula you can use. And like this 47, the matrices A and B will be inverse to each other only if. So inverse होने की condition क्या होती है हमेशा? A B किसी matrix के, if we are talking about the m into n into n matrix, m into n matrix, because they both are matrices are the same order. Okay, so A into B is equals to B into A should be equals to the
identity matrix. Okay, both should be identity matrix, then only the condition satisfy that they are inverse to each other. Okay, so none of the conditions satisfying here, so answer is D, none of these. Okay, because they should be always one, oh sorry, identity matrix, because A is equals to B is not kind of thing, because A B कुछ भी हो सकता है, अगर identity matrix नहीं हुआ something else, but वो बराबर होने की condition नहीं है, they are equal but they are identity matrix also. Okay. These kind of basic questions you can just like this question. This is a 50. This is a gamma function question, like sine inverse gamma, because limit is this is standard questions. Okay, 0 to pi by 2. So you will find that this are gamma questions in definite integral. There is a topic called gamma functions and gamma integrals. So you can go through it, and this is a direct formula, like 2 की power 3 sin की power 3 भी होता है, odd even भी होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला अलग से उन्होंने डिजाइन कर रखा है, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अलग से उसमें पूरा होता है, तो डायरेक्टली आपका निकल जाएगा आंसर. ओके, or these all are the basic GK questions and the general awareness. Already I have discussed all these kind of things, because I'm not discussing here all these things because they are not static GS. Some of the portion is static because I already discussed was static and dynamic GS, what is static GS and what is dynamic GS. So most of the, like in this question, some of asking is what is the, who is the prime minister of Gujarat. उस टाइम की अलग बात है यार, इस टाइम क्या पता चेंज हो गए हो, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डायनामिक जीके की आप प्रिपरेशन करते रहो. ठीक है, सो कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है. इसमें ऐसा कुछ है नहीं. लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात. तो इस तरह की चीजें एक बार नए, क्योंकि ये सारा का सारा दोबारा से कोई इसको करके कोई फायदा नहीं है. ठीक है, क्वेश्चंस का टाइप ही रहेगा, जस्ट गो थ्रू इट फ्रेशली. ओके, इसको फ्रेश उसमें देखो आप, जो जितने भी नए क्वेश्चन एक बार पैटर्न्स देख लो. और मैंने बोला है लास्ट टाइम भी, मैंने बताया था कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर जीएस, if there is an exam in October, November, just go through the GS or static GS portion first 9 months before the exam. Only first 9 months. Even UPSC is not asking in that level. They are asking only for the 6 months or 9 months GS in their exams. Okay, so only 5 to 6 months GS is enough for you for any competitive exams. Like, so mainly I will focused on the technical part, mainly instruments and electronics part, which are most tricky questions. Like this question is 71, because this question is beyond your scope, guys. Okay, why I'm saying this? Let's see. The second harmonic component of the periodic waveform given in the figure has an amplitude of, look, जैसे ही आप इसको देखोगे आपके दिमाग में एक चीज आएगी, दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन. और जनरली पीपल इसको, लोग जो है इसको छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, कि इसका ए एन बी एन सी एन जो भी है निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें उसका एम्पलीट्यूड देखना पड़ेगा, इसका फर्स्ट हार्मोनिक देखना पड़ेगा, सेकंड हार्मोनिक देखना पड़ेगा. ठीक है, तो उसको इसलिए करते नहीं है. बट दीज आर द वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चंस. हाउ, लुक, थोड़ा सा मैं नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक बार जरा उसको ध्यान से देखना है यहाँ पे. लाइक दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या इन्होंने दे रखा, पीरियडिक वेव फॉर्म, पीरियडिक स्क्वायर वेव फॉर्म. देखो है पीरियडिक है, ये आगे पीछे भी ऐसे बढ़ा हुआ है, ऐसा समथिंग पीछे भी कुछ होगा. ठीक, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, तो हमेशा देखो ये चीज ट्राई करो देखने की. एक पीरियड उठा लो कोई भी, सपोज इस पीरियड को उठा लो. ओके, फर्स्ट चेक द कंडीशन इफ दिस इज ऑड और इवन. ऑड और इवन की कंडीशन हमेशा चेक करो. इसको उठा लिया, इसको उठाने के बाद एक पीरियड उठाना है कोई भी, यहां से यहां तक का सपोज मैंने करो, मैंने एक पीरियड उठा लिया, ये पूरा पीरियड हो गया इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच. चलो मैं यहाँ थोड़ा मार्क कर देता हूँ अलग से. हम्म, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच मैंने एक पीरियड मान लिया. ठीक है, ये देखो, ये पूरा एक पीरियड हो गया, ये पूरा एक स्क्वायर वेव बन गया यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच. अब मैं क्या करूंगा, इसका हाफ ऑफ द पीरियड मैं फिक्स कर दूंगा. ये सपोज करो मैंने ये पीरियड फिक्स कर दिया, तुम कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं यही लो, तुम कोई भी ले सकते हो. आई एम जस्ट गिविंग यू द लॉजिक कि यहाँ पर इसको फिक्स कर दो, एंड इसका तुम क्या करो, ठीक है, इसकी मिरर इमेज ले लो. इसकी मिरर इमेज लो अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर अपोजिट टू वाई एक्सिस. अब देखो इसकी मिरर, इसको फिक्स कर दिया, इसकी मिरर इमेज लोगे अपोजिट साइड में. ठीक है, तो जैसे ही तुम इसकी मिरर इमेज लोगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो अब ये देखो, क्या ऊपर वाली टर्म और जो नीचे वाला वेव है, या जो भी वेव का पार्ट है, क्या ये सिमिलर है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है. देखो अभी यहाँ क्या ये सिमिलर है, सिमिलर है. तो
जब भी ये सिमिलर हो जाएंगे इसका मतलब क्या है कि ये ऑड है, ठीक है, ये ऑड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमने ऑड ही तो लिया, माइनस का करके हम देख रहे हैं ना, क्योंकि हम देखो यहाँ पर माइनस का एक्स है, हम माइनस के एक्स को बराबर कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा ऑड है, ठीक है। अब ये ऑड कंडीशन हो गई। अब ऑड में देखो क्या होता है कि एक पहले ऑड हो गई, अब दूसरा एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं हाफ वेव सिमेट्री। क्या कहते हैं इसको? हाफ वेव सिमेट्री, ठीक है, हाफ वेव सिमेट्री। अब इसमें हम हमेशा एक पीरियड पे नहीं, हम हमेशा एक पीरियड का भी हाफ लेस देन हाफ t/2 या समथिंग उसको हम करके देखते हैं। सपोज करो ये अभी इस कंडीशन, अब एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, दिस इज ऑड, ठीक है, दिस इज द ऑड, ये कंडीशन सेटिस्फाई। अब इसको हाफ वेव सिमेट्री चेक करो, तो हाफ वेव सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, पूरा एक पीरियड ले लिया, ये वाला पीरियड इस बार ले लो, ठीक है। इस वाले पीरियड में, चलो मैं इसके लिए दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, तो इस वाले पीरियड में टोटल मैंने इसको फिक्स कर दिया, इस वाले को मैंने फिक्स कर दिया, यहीं रहने दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने अपना वेरिएबल बनाया हुआ एक तरह से। तो मैं क्या करूंगा, इसको फिक्स करने के बाद मैं इसको यहां से यहां उठा के लेके आ जाऊंगा, इसके ऊपर रख दूंगा। जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये ऑलवेज सिमेट्री, देखो यहाँ पर भी सेम हो गया, ये यहाँ पर भी सिमिलर है ऊपर नीचे। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ हाफ वेव सिमेट्री। अब जब भी कोई वेव हाफ वेव होता है तो इसका मतलब उसके अंदर साइन, ये ध्यान से स्टेटमेंट सुनना, हाफ वेव सिमेट्री जब भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसका मतलब होता है कि जो मेरा साइन एंड जो कॉस हार्मोनिक्स है दोनों एग्जिस्ट करेंगे, साइन भी एग्जिस्ट करेगा, कॉस भी एग्जिस्ट करेगा, बट in only in odd harmonics, like sine will be exist only in sine omega t, sine 3 omega t, sine 5 omega t, sine 7 omega t, like this cos omega t, cos 3 omega t, cos 5 omega t, cos 7, they always exist in ऑड हार्मोनिक्स, ठीक है, उनका फ्रीक्वेंसी देखो ऑड में है हमेशा। अब ये देखो यहाँ पर ये ऑड भी सेटिस्फाई कर रहा था, दिस वेव इज ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्री। तो अब ऑड की कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो ओनली विच वेव विल बी प्रेजेंट, ओनली साइन और कॉस, ओनली साइन, बिकॉज साइन इज ऑड। तो ऑड के अंदर अब हाफ वेव सिमेट्री लगी, मींस दे ओनली सिंगल टर्म विल एग्जिस्ट, साइन के ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे इस वेव के लिए, साइन के ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर वेव के लिए, सिर्फ साइन के, बिकॉज ये ऑड की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सिर्फ साइन। अगर ये सिर्फ हाफ वेव सिमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होता तो साइन और कॉस दोनों लेते, बट इट इज ओनली सेटिस्फाइंग द ऑड हार्म ऑड और सॉरी ऑड एंड हाफ वेव सिमेट्री बोथ। तो पहले ऑड की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ओनली साइन टर्म, एंड हाफ वेव सिमेट्री को सेटिस्फाई करने के लिए साइन का भी ऑड हार्मोनिक्स। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ द पीरियडिक वेवफॉर्म विल बी, तो देखो सेकंड 0 1 2, ऑड इज सॉरी 2 इज इवन और ऑड, ऑलवेज ऑड। तो इसका मतलब क्या हुआ, और मैंने क्या बोला, हाफ वेव सिमेट्री में ओनली विच हार्मोनिक्स विल बी प्रेजेंट, ऑड हार्मोनिक्स, लाइक 1 3 5। तो 2 प्रेजेंट होगा कि नहीं, 2 प्रेजेंट नहीं होगा, इसका मतलब 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 है, ठीक है। तो इस तरह की सिमेट्रिसिटी को चेक करके हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं, हमको इनको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ओके डन। नेक्स्ट, व्हाट इज एलवीडीटी, ये सब देखो ये ट्रांसड्यूसर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए या फिर फोर्स मेजरमेंट के लिए इन सबको यूज करते हैं, जनरली इंडक्टिव हो तो ऑब्वियसली बात, जैसे मैंने ट्रांसफार्मर बोला तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर ही होगा, आंसर इज सी। कम टू द नेक्स्ट। अब आ डायोड हुज टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, अरे यार ये कौन सा, देखो डायरेक्ट 72 के बाद 87 क्वेश्चन आ गया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं, सो देख लेना। अ डायोड हुज टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड एज ID is equals to IS V by VT, where I is the reverse saturation current and VT is the thermal voltage already given. If biased at ID is equals to 2 milliampere dynamic resistance, देखो किसी भी डायोड का डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है N is equals to सॉरी R इज इक्वल्स टू, क्योंकि रेजिस्टेंस डायनामिक रेजिस्टेंस, इसको हम AC रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। R इज इक्वल्स टू एन वी टी बाय में IF। IF क्या है मेरा, डायोड करंट, या तो इसको तुम ID भी लिख सकते हो, डायोड करंट है, ठीक है। जनरली एन की वैल्यू जो होती है वो जर्मेनियम के लिए हम 1 रखते हैं, सिलिकॉन के लिए 2 रखते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ इन्होंने बोला नहीं पर्टिकुलर केस, तो बाय डिफॉल्ट द एन वैल्यू विल बी 1। एन की वैल्यू 1 होगी, वीटी की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी 25 मिली वोल्ट दे दिया है, ठीक है, और आईडी की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास गिवन है 2।
मिली एम्पियर। तो जब इसको तुम कट करोगे तो इट विल बी अराउंड 12.5 ओम्स। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। सो कम टू द नेक्स्ट। देखो ये सारा कुछ तुम जानते हो यार। अब a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट टू क्या कितना होगा, आई थिंक a प्लस b एंड a प्लस c, आंसर इज a। ABCD is using only two input, please number of the requirement of the gate ABCD। देखो टू से ही कर रहे हैं, तुम देख लेना इसको कैसे करेंगे। ओके, तो एक बार ये सारा कुछ देख लेना था। इफ द इनपुट इज 50 हर्ट्ज साइनसॉइडल, द रिपल फ्रीक्वेंसी इन द आउटपुट विल बी। ये देखो, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है, इसकी अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, देन द लोएस्ट ट्रिपल फ्रीक्वेंसी विल बी। ठीक है, मतलब वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी मेरी उसकी पूछ रहा है। तो जो मेरा जो फुल वेव, सॉरी कितना, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर है, उसका जो आउटपुट कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, एवरी साइकिल इज रिपीटेड बाय हाफ ऑफ देम। ठीक है, तो अब ये देखो, अब जो इनपुट अगर 50 हर्ट्ज है, तो जो आउटपुट होगा वो ट्वाइस ऑफ एफ एफ हो रहा है। तो जो हाफ वेव सॉरी जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, उसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 20, 15 टू 2, 100 हर्ट्ज। ठीक है, देखो IC 741, IC 555, IC 741 is the op-amp IC and the 555 timer is the timer IC respectively। ठीक है, what is the value of the CMR of an idle, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ऑल क्वेश्चंस आर रिपीटेड ओनली, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, एक बार देखोगे तो खुद पता चल जाएगा। आंसर इज डी, इनफिनाइट। ठीक है, मेथड ऑफ रेगुलेशन इन एन SMPS। SMPS क्या होता है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रहता है, तो ऑब्वियसली यार PCM यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मर इज एक्चुअली अ वोल्टेज जनरेटर पावर सोर्स, नन ऑफ दिस एम्पलीफायर, एम्पलीफायर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वोल्टेज जनरेटर पावर सोर्स कह सकते हैं एक बार को, वोल्टेज जनरेटर, जनरेट तो वैसे कुछ कर नहीं रहा, बट ठीक है, हाँ वोल्टेज जनरेटर ही होता है जहां तक है। ठीक है, एम्पलीफायर नहीं होता क्योंकि पावर सेम होती है। ठीक है, हीट सिंक्स आर यूज फॉर हीटिंग ऑफ द आईसी, सिंकिंग ट्रांजिस्टर इन अ वाटर, इंक्रीजिंग वेट, डिसिपेटिंग हीट। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जब बनाते हैं तो हीट सिंक का यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारे डिवाइसेस जब काम के दौरान गर्म होते हैं, तो उनका जो हीट है वो बाहर एम्बियंस टेम्परेचर में हमको बाहर निकलते हैं, जिससे कि मेरे डिवाइस को कोई भी हार्म ना हो। सिंपल डायोड इज, देखो इसके पीछे ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, एक तरह से कोई कुछ भी आंसर देता है इसका। कोई एक्टिव डिवाइस, सॉरी कोई पैसिव डिवाइस बोल देगा, कोई एक्टिव डिवाइस बोल देगा, कोई दोनों बोल देगा। ठीक है, बट बेसिकली जो होता है, वो जो डायोड होता है वो होता पैसिव डिवाइस है। ठीक है, होता पैसिव डिवाइस ही है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशंस हम इसको एसी, हम इसको एक्टिव भी बना सकते हैं और पैसिव भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशंस कि हम किस तरह की एप्लीकेशंस कर रहे हैं। तो जनरली अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे तो ठीक है, देखो तुम्हारा आंसर सिर्फ पैसिव तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारा आंसर या तो बी होना चाहिए या ए होना चाहिए। ठीक है, ट्रांजिस्टर इज एक्टिव डिवाइस, ट्रांजिस्टर ऑब्वियसली एक्टिव डिवाइस होगा। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एन इंसुलेटर एट, ऑब्वियसली जीरो की। ट्रांजिस्टर हैज लोएस्ट आउटपुट इम्पिडेंस इन, देखो लोएस्ट आउटपुट इम्पिडेंस किसका होगा, ऑब्वियसली CB का। ठीक है, कॉमन बेस का। ठीक है, कॉमन बेस का। इन बाइपोलर ट्रांजिस्टर बेस इज, हमेशा उसको पतला बनाया जाता है और बहुत ज्यादा लाइटली डोप्ड, बिकॉज उसके पीछे रीजन है कि हमको उसका रिकॉम्बिनेशन कम हो सके। राइट, रिकॉम्बिनेशन रेट को कम करने के लिए उसका, उसको कम बनाते हैं। इबर बोर मॉडल्स ऑफ द ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंट टू डायोड्स कनेक्टेड। इबर बोर मॉडल बहुत पुराना मॉडल हो गया, कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा, तो ना इतनी स्टडी होती है। जनरली ये ट्रांजिस्टर डायोड्स को बैक टू बैक लगा देते हैं। ठीक है, सीरीज में नहीं, बैक टू बैक लगा देते हैं, और उसके बाद उसका हम क्या करंट फ्लो है, क्या कैरेक्टर्स है वो देखते हैं। ठीक है, JFET एज अ मेन ड्रॉबैक ऑफ स्मॉल गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ठीक है, नॉइसी तो वो भी नहीं होता है, खैर। द MOSFET switches on its steady state may be considered equivalent to, switch in its on state may be considered is equivalent to resistor, capacitor, inductor, बैटरी। अब देखो स्विचिंग की अगर हम बात करें तो ये एज अ बैटरी ही काम करेगा, एज अ स्विच। ठीक है, क्योंकि
ठीक है, तो यही होगा यार, मुझे तो लगता है यही है इसका आंसर। तो एक अवलांच ब्रेकडाउन प्राइमरी डिपेंड ऑन फिनोमिना ऑफ आयोनाइजेशन के फिनोमिना पे काम करता है ये, ठीक है। इम्पैक्ट आयोनाइजेशन पूरा नाम है इसका। मोस्ट हैवीली डोप्ड रीजन इन अ ट्रांजिस्टर इज एमिटर, क्योंकि वो सप्लायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड शो द नेगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है, टनल डायोड, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इस तरह के, ठीक है। टनल डायोड डिप्लोमा आई थिंक सबने पढ़ा होगा, माइक्रोवेव का सब्जेक्ट होगा उसने जरूर पढ़ा होगा। गन डायोड, टनल डायोड, ये सारा कुछ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये वोल्टेज होता है मेरा, ये करंट होता है यहाँ पे। तो वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि मेरा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और करंट कम हो रहा है, और मैक्स मिनिमम करंट जिसको होता है इसको हम बोलते हैं वेले पॉइंट, जिसको हम वीपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। वीपी, वीपी, ठीक है। ये मेरा होता है मैक्सिमम वीएम, या जो आईएम बोलते हैं, ठीक है? ये मिनिमम वोल्टेज होता है। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना यार, विल डिस्कस। हाँ, सो फॉर टुडे इज इनफ नाउ। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हार्ड वर्क करते रहो, ठीक है। ओके, डन।